متاثر لاہور کے 61 مقامات رات 12 بجے سے مکمل بند۔ پنجاب کابینہ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ جوہر ٹاؤن بی بلاک، F2 بلاک، بابڑا ٹاؤن F2 بلاک، G بلاک، کلا گجر سنگھ، عبدالکریم روڈ، رائل پارک اور دیگر علاقے شامل۔ عسکری 10، DHA فیز 1 اور 5 مکمل بند ہوں گے۔ فہرست کی کاپی دنیا نیوز پر۔ پنجاب کے 7 شہروں میں بھی سلیکٹڈ لاک ڈاؤن۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات، ملتان، ڈیرہ غازی خان میں متاثرہ علاقے سیل کرنے کی منظوری۔ چیف سیکرٹری نے ضلع انتظامیہ کو احکامات جاری کر دیے۔ فیصل آباد میں بھی کورونا کا زور۔ ستارہ کالونی، ڈی ٹائپ کالونی، پیپلز کالونی سمیت 90 سے زائد علاقے بند کرنے کی تیاری۔ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس تعینات ہوگی۔ سرگودھا کے 14 مقامات پر بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کراچی کے ضلع غربی میں بھی کورونا بے قابو۔ وائرس سے متاثرہ 16 UCs کے کئی علاقوں کو سیل کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا خط۔ مریضوں کی تعداد کے حساب سے سائٹ کا علاقہ پہلے نمبر پر۔ سیاستدانوں میں بھی کورونا تیزی سے پھیلنے لگا۔ وفاقی وزیر امین الحق مہلک وائرس کا شکار۔ MQM رہنما نے ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو گھر پر ہی قرنطینہ کر لیا۔ کورونا کے سائے گہرے۔ ایک ہی دن میں ریکارڈ 111 اموات، تعداد 2839 ہو گئی۔ ملک بھر میں 1,48,921 شہری وائرس کا شکار۔ پنجاب میں 55,878، سندھ 55,581، خیبر پختونخوا 18,472 اور بلوچستان میں 8,327 کیسز۔ عوام کا غیر سنجیدہ رویہ کورونا پھیلاؤ کی بڑی وجہ۔ بازاروں اور مارکیٹس میں رش، حفاظتی تدابیر نظر انداز، ماسک کا استعمال، نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال، جگہ جگہ SOPs کی خلاف ورزی۔ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ اگر بات سن لے تو مناسب ہوگا۔ موقع دیں اسپیکر صاحب آپ تسلی رکھیں پلیز۔ آپ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ آپ 1 منٹ بیٹھ جائیں۔ آپ کسی کو، میں ہاؤس چلا رہا ہوں، میں نے موقع دیا، آپ ان کی بات سننے دیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس۔ مراد سعید کی جانب سے خواجہ آصف کو جھوٹا کہنے پر اپوزیشن کا ہنگامہ۔ ارکان وفاقی وزیر کو بار بار ٹوکتے رہے۔ نشستوں سے کھڑے ہو کر نعرے بازی، تلخ جملوں کا تبادلہ۔ کارروائی 10 منٹ کے لیے روکنا پڑ گئی۔ وزیر خارجہ نے کہا بھارت سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بنا تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ خواجہ آصف کا شاہ محمود سے وضاحت کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ ایوان میں پہنچ گئے۔ ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ بھارت کی مستقل رکنیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشمیر پر موقف ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ شاہ محمود قریشی کا اظہار خیال۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کسی صورت قبول نہیں۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی شہریوں کو حقائق سے آگاہ رکھنے کی بھی ہدایت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں متعلقہ وزیر اور معاون خصوصی کی شرکت۔ کئی کمپنیز نے پیٹرول ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ عمران خان کو چھاپہ مار کارروائیوں پر بریفنگ۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں پیٹرول بحران کا تذکرہ۔ لوگوں نے گھروں اور غیر قانونی پمپس پر ذخیرہ کر لیا۔ ندیم بابر کا نیا موقف۔ ارکان نے وضاحت۔ چھوٹی سطح پر پیٹرول کی اتنی بڑی قلت نہیں ہو سکتی۔ صورتحال بہتر نہ ہونے پر نئی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزراء کی تنقید۔ اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मरहला वार इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। इब्तदाई तौर पर अरब ममालिक के लिए परवाज़ें बहाल करने का प्लान। बेरोजगार होने वाले महकशों को तरजीही बुनियादों पर वापस लाया जाएगा। काबीना इजलास में फैसले। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पेशा वाराना तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। पंजाब की मईशत क्रैश लैंड हो चुकी, जिसे बहाल होने में दहाइयां लगेगी। सूबे में कम से कम 10 लाख अफराद बेरोजगार होंगे। हर लम्हा बदलती पॉलिसियां हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। लीगी रहनुमा उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब की करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर इदारों ने काविश को सराहा कि इलेक्ट्रिक और तमाम बिजली कंपनीज ने भी नैब पैगामात छापना शुरू कर दिए। चेयरमैन जावेद इकबाल। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला। दौरान तफ्तीश भारतीय एहलकार से जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद। पुलिस ने जाली करेंसी कब्जे में लेकर मुकदमे का हिस्सा बना दी। शहरी बाबर हुसैन जख्मी हुआ है। इस बारे में डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से बात कर लेते हैं। इमरान, क्या इत्तलात हैं? बिल्कुल, जो आज जो है बक्सर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की जानिब से जो है बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, और जिसकी वजह से दानिस्ता जो है वो सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक मासूम शहरी बाबर जिसका ताल्लुक गांव मैटिका से था, वो इसमें जख्मी हुआ है। 9 तारीख को भी भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है जदरोड सेक्टर्स पे इसी तरह सिविल आबादी को निशाना बनाया गया था बिला इश्तियाल फायरिंग से, और उसके नतीजे में 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी हुए थे। जहां भारत को लद्दाख और उसके साथ साथ दूसरे चीन के साथ जो बॉर्डर है वहां पर आज जो है वो इंतहाई शर्मिंदगी का सामना पड़ा, और उसको खिफत उठानी पड़ी जब उसके एक अफसर समेत 2 फौजी जो है वो वहां पर हलाक हो गए। और उसके बावजूद जो है भारत जो है वो और भारत की अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो अपने जारहाना अज़ाइम से बात नहीं आ रहे। तो आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के बक्सर सेक्टर पे भारत ने अपनी वही पुरानी रवायत जारी रखी और सिविल आबादी को निशाना बनाया। ठीक है मोहम्मद इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि पहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, अब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी मजम्मत करते हैं। इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलवक्त आपको यह अहम खबर दें। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। DG ISI ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इस्तकबाल किया, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी, LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। DGI SPR का यह बताना है कि आला अस्करी क़यादत ने ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। आला अस्करी क़यादत का पेशा वराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा किया। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी ISI हेडक्वार्टर्स आए। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। DG ISI ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इस्तकबाल किया। इलाकाई सिक्योरिटी, LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफ किया गया। तो अब खबर ये कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि पहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, अब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा अहसन अंदाज से लड़ा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इसराइल को कभी मुल्क नहीं माना जाएगा।
हमारे प्यारे पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता था। इमरान खान की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती है। आज यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है उसकी मजम्मत करते हैं। पहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था। पहली दफ़ा ख़त्म नबूवत का मुकदमा वहाँ पे लड़ा जाता है जहाँ से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले 50 साल अरसे में पहली दफ़ा 50 साल के बाद 2 दफ़ा 1 साल के अंदर कश्मीर इशू के ऊपर डिबेट होती है। कश्मीर जो इंडिया अपना अंदरूनी मसला समझता था, आज वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज से इमरान खान ने लड़ा, ये माजी में किसी ने नहीं लड़ा था। कौन अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था तो फिर ये कहेंगे कि ये जवाब दे रहा है। मैं अगर बात करूंगा कि सज्जन जंदाल को बगैर वीजा के किसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। यहाँ पे स्पीकर साहब, यहाँ पे अगर ये इसराइल को और इन चीजों की बात करते हैं, ख्वाहिश किसी की हो सकती है। इंशाल्लाह इमरान खान के होते हुए और यहाँ पे इस पार्लियामेंट के होते हुए किसी की भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। इसी हवाले से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई हकीकत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जो साबिका हुकूमतों का था। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कर रहे थे। एट्रीब्यूट की जा रही हैं जिस पर इन्हें तशवीश हुई और बजा तौर पर होनी चाहिए थी, तो उसकी ये वजाहत चाह रहे थे। और वो ये था कि पाकिस्तान कहीं इजराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा। मैं वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वजाहत करना चाहता हूं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का जो तारीखी मौक़िफ़ था आज भी वही है। और वो क्या है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के कल भी कायल थे, आज भी कायल हैं। कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। हम नहीं 5,500 हम इकट्ठा करेंगे। हम हंसते थे जब ये बजट बना रहे थे, ईमान से मैं हंसता था। मैं लोग कहता था अगर ये 45 कर देना मान जाऊंगा मैं। हमने डबल किया हुआ है। 1900 पे मिला था हमें 2013 में और 4000 के इनको दे गए हैं। आज 4000 कर लिया इन्होंने या नहीं किया जी? 4000 नहीं कर सके। ये 55 फिर उन्होंने 4.9 रख लिया ट्रिलियन। 4.9 ये किस तरह कर रहे हैं? ये अपने आप को उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो फिगर्स की, बजट की। तो ये इस तरह नहीं होता। ये बैठ के एक तरीके कार से चलते और बहुत सारी रास्ते थे। अब इन गरीबों का क्या कसूर है जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई? ये कैबिनेट किस लिए है? ये इतनी बेहस कैबिनेट। मुझे बड़ा अफसोस है कि भाई 10% अब अगर आप नहीं बढ़ा सकते, इन्फ्लेशन 14% है, तो उससे इधर इतना डेफिसिट है, इतना बड़ा गैप है, उधर और 5-10 बिलियन बीच में घुस जाता, उससे निकाले भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली में मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। डेप्यूटी स्पीकर बार बार अरकान को खामोश कराते रहे। जावेद अब्बासी और शेख रुहेल असगर का मुराद सईद से तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। कशीदा सूरत हाल के बायस डेप्यूटी स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। जो कुछ कहा गया न सिर्फ वो झूठ पे मबनी, बल्कि हम उन अल्फाज की भी मुजम्मत करते हैं शदीद किस्म। अगर बात सुन ले तो देखिए, बात सुन ले, मौका दें, बात सुने। वफाकी वजीर का ओहदा है इनके पास। दूसरी दफा इस असेंबली के मेंबर बने हैं, हमारे सीनियर हैं इस टाइम। आप उनकी बात सुने जी। जी मुराद सईद। स्पीकर साहब, आप तसल्ली रखें प्लीज। आप जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे। आप 1 मिनट बैठ जाएं। आप किसी को, मैं हाउस चला रहा हूं, मैंने मौका दिया, आप उनकी बात सुनने दें। बोले खामोश नहीं होंगे तो मैं इनको आईना दिखाऊंगा। आप खुद डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आपको हाउस का पता है कि किस तरह चलाना है। आप इस तरह नहीं करें। आप प्लीज आप बैठ जाएं, तसल्ली से सुने। आप स्पीकर साहब, उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है? इसकी बात के बाद
मुझे हाउस चलाना आता है और मैं जो है